Good morning, everyone. Our next topic is how is bread made? Okay, mostly we are eating the bread, toast, cakes. So, when we eat that, we observe that some fluffy structure and some holes are present there. So, how it is made in the industry? Why that porous structures are present there? So, we just see that thing ki how it is made or how it is prepared in the industries. Find out how to use the solution prepared in the above experiment to make the bread. Follow the recipe and make the bread. Find out and note down the reasons why the dough rises and make the bread spongy. Okay, whatever the solution that we made in the yeast, that we take the dry yeast, we take a sugar, we add a lukewarm water in that and make a mixture. Okay, like that, just use that solution to make a bread, and find out after adding that solution, that yeast solution in the bread flour, what do you see in there, why that dough becomes rises and why the bread make a spongy. Just find out that answer. Do you know, often alcohol is produced along with sugar in sugar factories. The molasses is produced from sugarcane juice. It is rich in the carbohydrates. Molasses is fermented with the help of yeast called Saccharomyces. Now, the next production is of the alcohol. That alcohol is prepared in the industry by using the molasses. Now, what is molasses? That molasses is the leftover material of the sugarcane. जब शुगर केन से जो जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बचा हुआ जो शुगर केन का एक्सट्रैक्ट रहता है उसे कहते हैं मोलासेस. एंड दैट फ्रॉम दैट मोलासेस वी आर मेकिंग द अल्कोहल इन द शुगर फैक्ट्रीज. It is rich in the carbohydrate. That molasses is rich in the carbohydrate because it contains the sugar. Sugar is nothing but a carbohydrate. That molasses is fermented with the help of yeast. Again we add the yeast culture in that. That yeast is the Saccharomyces. Okay, while making the alcohol. In this process, the ethanol C2H5OH is produced as the primary product and esters and other alcohol as the secondary products. So, during this process, there is the production of alcohol. Which alcohol? Ethanol. But along with that ethanol, there is the formation of ester also and some other products also. Okay. So here alcohol is also produced, ester and some other secondary products are also formed during the production of alcohol in the industries. Spirit and other alcohol can be obtained from ethanol. That ethanol is used as smokeless and high quality fuel. That spirit and other alcohols also made from the ethanol. You know, spirit, it is used in the medicinal purpose, and some other types of the alcohol also made from that ethanol, and that ethanol is the smokeless and high quantity fuel. That ethanol we also used in our laboratory in the spirit lamp. Spirit lamp means अगर burning purpose के लिए हमें एक लैम्प लगता है, वो लैम्प में हम लोग रॉकेट या कुछ कोई अलग ऑयल नहीं ऐड करते, हम लोग उसमें इथेनॉल ऐड करते हैं. सो इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ फ्यूल ऑल्सो. Why it is called smokeless? Because no carbon or like other gases are released during its burning. Beside molasses, maize, barley and other grains are also useful for industrial production of ethanol. Now we are making the ethanol by using the molasses here, but along with the molasses we can use maize also, barley also, and you can use the different grains for the production of ethanol. Glucose and fructose are the sugars present in grape juices. Just highlight that thing, that glucose and fructose, these are the sugar, means both are the carbohydrate, and that presence in the grape juices are also fermented with the help of yeast to produce alcohol, which is used for making wines. Now wine is also the alcoholic drink, and that wine is made from the grape juice, and in that grape juice we add yeast. Okay, so and that wines and alcohol made by the fermentation technique, and for that fermentation technique we are using yeast here. Like for making the ethanol we are using the Saccharomyces species here. Like that, the yeast is also used in making the wines. Use your brain power. Okay,
Just try to give the answer of this question. Recently it has been made compulsory in India and some other countries to mix 10% ethanol with fuel like petrol and diesel. What is the reason for this? Yes, what is the answer? Ki why that ethanol, 10% ethanol, if you are taking the 100% alcohol, petrol or diesel, in that you just add 90% of the petrol and diesel and add 10% of the ethanol to make it 100%. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? क्यों ऐसे कहा गया है कि हमें पेट्रोल और डीजल के साथ अल्कोहल मिक्स करना है या इथेनॉल मिक्स करना है? ओके, व्हाट्स द रीज़न? बिकॉज इट इज़ द स्मोकलेस फ्यूल. इनमें से जो हार्मफुल गैसेस है वो बहुत कम निकलती है. ठीक है, अगर हम इसे पेट्रोल और डीजल के साथ अगर मिक्स करते हैं तो पोल्यूशन उतना ही कम हो सकता है. दैट्स द रीज़न बिहाइंड दैट. वाई आर द वाइनरीज लोकेटेड नियर नाशिक इन महाराष्ट्र? बिकॉज yes, the Nashik is a leader in the production of the grapes. Chapati is made from wheat, only swell up, but the bread becomes spongy, soft and easy to digest. Why it is so? Because while making the chapati we are not using or adding any microorganism here like yeast, but while making the bread we are adding there the culture of the microbes like the yeast, dries. That's why it becomes the spongy. Bioremediation. Bioremediation means it is the another use of yeast. Okay, so what is the use of yeast? Bioremediation means क्या हम नेचर से और इन्वायरमेंट से पोल्यूशन कम करने के लिए भी ये यीस्ट का यूज कर सकते हैं? यस. सो जस्ट लेट्स सी द यूजेस ऑफ द यीस्ट. दैट यीस्ट Yerevia lipolytica is used to absorb toxin released during the production of palm oil and the heavy metals and minerals released in some other industrial processes. Saccharomyces cerevisiae is used for absorption of the pollutant arsenic. Yes, here the uses of the yeast is given. The first yeast species, that is the Yerevia lipolytica, what it do? It absorb the toxin. ये टॉक्सिन जो टॉक्सिन है जो रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होगा? प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल, जहाँ पाम ऑयल्स का प्रोडक्शन होता है, या हेवी मेटल्स और मेटल्स का जहाँ प्रोडक्शन होता है, मेटल और मिनरल्स का प्रोडक्शन होता है, वहाँ से ये इंडस्ट्री से क्या होता है? बहुत सारा टॉक्सिन रिलीज होता है. वो टॉक्सिन जो है वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ये ईस्ट जो है येरोविया लिपोलिटिका, ये वो टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करता है. अगर किसी वाटर बॉडीज़ में या नेचर में अगर ये रिलीज हुआ टॉक्सिन चला गया तो हम वो टॉक्सिन को किससे कम कर सकते हैं? ये स्पीसीज से हम लोग इजीली एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं. लाइक दैट Saccharomyces cerevisiae इज ऑल्सो यूज्ड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द पोल्यूटेंट लाइक आर्सेनिक. आर्सेनिक ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल केमिकल है जो ह्यूमन बॉडी को भी अफेक्ट कर सकता है. अगर हमें ये पोल्यूटेंट नेचर से रिमूव करना है या उसको एब्जॉर्ब करना है तो हम कौन सी स्पीसीज यूज़ कर सकते हैं? Saccharomyces cerevisiae. अब तक हमें ये चीज़ नहीं पता थी कि नेचर में जो हार्मफुल कंटेंट प्रेजेंट है या गैसेस प्रेजेंट है हम उनको कम करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक यूज़ कर सकते हैं. ओके, अगेन नेक्स्ट यूज़, ऑयल स्पिल्स इन द ओशियन आर क्लीन्ड विद द हेल्प ऑफ Alcanivorax बैक्टीरिया. अगेन ऑयल स्पिल्स इन द ओशियन. ओशियंस में क्या होते हैं? ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के या पेट्रोल डीजल एक्सट्रैक्ट करने के वेल्स होते हैं. क्योंकि ये जो है पेट्रोल है, ऑयल्स है, क्रूड ऑयल्स है, ये हमें अंडर सी वाटर मिलता है. तो उसमें वेल्स बनाते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए. ये एक्सट्रैक्शन में अगर कुछ ऑयल वो ओशियन में लीक हो जाता है तो उससे बहुत सारे फिशेज भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, मर सकते हैं. So if we have to clear that oil from the ocean, then we can use that species of the yeast, or we can use the bacteria, that is the Alcanivorax bacteria. So by using this microorganism also we can clean the oil spills. Next topic is antibiotics. Now what is the antibiotics? That act against the harmful microorganism or harmful bacteria. They are the antibiotics. Okay. The carbon compounds obtained from some bacteria and the fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms are called antibiotic. I already told you, okay, that carbon compound obtained from some bacteria. We are obtaining or we are collecting some carbon compound from the bacteria or the fungi and use it for destroying
or for preventing the growth of harmful microorganism. Means here we are doing or we are using one bacteria to kill the another harmful bacteria or another harmful microorganism. So if we have bacteria or fungi, we just obtain the carbon compound from that bacteria and fungi, and we made antibiotic from that carbon compound, and that antibiotic we use to kill the harmful microbes that present in our body or on plant or in the animal. Such compound is called antibiotics. Antibiotics, a discovery of the 20th century, have brought about the revolution in the field of medicine. Yes, in the 20th century when the antibiotic has been discovered, that is a great discovery and a great revolution in the field of medicine. फील्ड में वो बहुत अच्छी या बहुत ग्रेट डिस्कवरी पाई गई, जिससे बहुत लोगों की जान फिर ईजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्सपोजर से बहुत लोगों की जान ईजिली बच जाती है. Even a disease like tuberculosis has been almost completely eradicated from some countries. Like that, when antibiotic has been discovered, at that time the tuberculosis is one of the very dangerous disease, mainly occurs in the human. TB के नाम से हम उसे जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को, जिससे पहले जब मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी तब लोगों की डेथ तक होती थी. लेकिन क्या हुआ, जब 20th सेंचुरी में जब एंटीबायोटिक्स डिस्कवरी हुई, तब से ये ट्यूबरक्लोसिस है, ये मोस्टली सारे कंट्री से इरेडिकेट हुआ है. इरेडिकेट मीन्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ है, क्योंकि अब इजीली हमें उसके ऊपर अभी भी ऐसे नहीं है कि पेशेंट कुछ भी नहीं है. टीबी के पेशेंट नो डाउट मिलेंगे, लेकिन उसका रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है. एंटीबायोटिक्स मेनली एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया. सम एंटीबायोटिक्स कैन डिस्ट्रॉय प्रोटोजोआ. और ये जो एंटीबायोटिक्स है जो हम लेते हैं, जो मेडिसिन हम खाते हैं, ये मेनली एक्ट करते हैं किसके अगेंस्ट? मेनली इट एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया. ये मोस्टली बैक्टीरिया को किल करते हैं एंड समटाइम्स इट डिस्ट्रॉय टू द प्रोटोजोआ ऑल्सो. और कभी कभी ये प्रोटोजोआ को भी किल करते हैं. सम एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल अगेंस्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया. दे आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. ओके, हाईलाइट द डेफिनेशन. सम एंटीबायोटिक useful against a wide variety of the bacteria is called broad spectrum antibiotics. Broad spectrum antibiotic. Broad, here the meaning of broad means that spread in very large amount. Okay, broad means ज़्यादा फैले हुए. So जब कोई भी एंटीबायोटिक ये एट अ टाइम बहुत ज़्यादा या ज़्यादा नंबर में अगर ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकती है, तो हम उसे कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. ओके, जस्ट रिमेंबर द टर्म फ्रॉम दैट वर्ड ब्रॉड. इफ़ द एंटीबायोटिक आर यूजफुल अगेंस्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ द बैक्टीरिया. वाइड वेराइटी मतलब बहुत सारे वेराइटी के बैक्टीरिया के अगेंस्ट अगर कोई एंटीबायोटिक वर्क करती है, जैसे कोई एक एंटीबायोटिक आप लोग लेते हो, अगर मतलब बहुत सारे डिसीजेस अलग अलग बैक्टीरिया से होते हैं, और सिर्फ एक एंटीबायोटिक अगर बहुत सारे डिसीजेस को क्योर करने में हेल्प करती है, इन दैट केस दैट एंटीबायोटिक इज कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट एग्जांपल विद डेफिनेशन. एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एक्सेट्रा. एंड व्हेन द पैथोजन कैनॉट बी आइडेंटिफाइड even through the symptoms of the disease are visible, broad spectrum antibiotics are used. What is given here about a broad spectrum antibiotic? When the pathogen cannot be identified. अगर आप हॉस्पिटल गए, अपने डॉक्टर्स को सिम्टम्स बताए कि मुझे ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स आपने बताए, लेकिन डॉक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है कि एग्जैक्ट नहीं कर पा रहा है वो कि एग्जैक्ट आपको कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है. उस टाइम वो क्या करता है, फर्स्टली आपको क्या वो सजेस्ट करता है, एंटीबायोटिक्स, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, क्योंकि उसको जो पैथोजन है, पैथोजन मीन्स हियर द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, नोट द मीनिंग. पैथोजन मीन्स डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उसे एग्जैक्ट कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप पे अटैक किया है ये नहीं पता है, पैथोजन उसको आइडेंटिफाइड नहीं है कि एग्जैक्ट कौन सा पैथोजन है, तब वो फर्स्ट ट्राई करता है हमारे बॉडी पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. ओके, मतलब आपने सिम्टम्स बताए लेकिन वो सिम्टम्स क्लियरली विजिबल नहीं है. ठीक है,
मतलब डॉक्टर को ये रिकॉग्नाइज हो रहा है कि आपको जो इन्फेक्शन हुआ है वो पर्टिकुलर वो बैक्टीरिया से नहीं है, तो अब आपको क्योर करने के लिए उसने कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, तो उस टाइम वो यूज करता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। Whenever a pathogenic microorganism is definitely known। और अब सेकेंड कंडीशन ऐसी है, ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई, अब ये सेकेंड कंडीशन ऐसी है कि डॉक्टर को एग्जैक्ट पता है कि आपको कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, या कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने आपके ऊपर अटैक किया है। लाइक दैट whenever you are going to the hospital and sometimes the doctor advise you for the blood testing। ओके तो आपको डॉक्टर ब्लड टेस्टिंग के लिए एडवाइज करते हैं। अगर पर्टिकुलर डिसीज अगर डायग्नोज्ड हो जाता है, पता चल जाता है वो ब्लड टेस्टिंग में, तो इन दैट केस व्हेन द डॉक्टर डेफिनेटली नोज अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन ही सजेस्ट यू नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो उस कंडीशन में जब उसको एग्जैक्ट पता है कि आपको कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है या कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हुआ है, तब वो आपको सजेस्ट करता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल्स आर गिवन, highlight this definition also and this example also: penicillin, gentamicin, erythromycin। Okay, next one of the institute is given here that is situated in Pune and that established in 1952। highlight this term because it is essential for the objective purpose। one of the institute that is the National Institute of Virology, or you can say it is the NIV। Someone can ask you the full form of NIV, it is the National Institute of Virology, that is situated in Pune in 1952। most of research regarding the viral diseases like measles, jaundice and other diseases of the lungs, okay, that diseases and their infective viruses are studied in this laboratory or in this institute, that is the National Institute of Virology। now we are cover here one of the narrow spectrum antibiotic, that is a penicillin। let's see what is the penicillin, which organism responsible for the production of the penicillin, who discovered that, what is the uses of antibiotic। okay, let's see। penicillin is the group of antibiotic obtained from a fungus Penicillium। दैट एंटीबायोटिक मेड फ्रॉम अ फंगस। मोस्टली हमें ऐसा लगता है कि फंगस ये जो है बहुत हार्मफुल है, क्योंकि घर में ईटेबल्स पे अगर फंगस ग्रो हो जाते हैं तो हम उसे फेंक देते हैं, बट नॉट ऑल फंगस आर हार्मफुल। जस्ट रिमेंबर दिस लाइन, नॉट ऑल फंगस आर हार्मफुल, सम फंगस आर हार्मफुल एंड सम आर यूजफुल। सो वन ऑफ द फंगस दैट इज पेनिसिलियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग द एंटीबायोटिक दैट इज पेनिसिलिन। ओके, एंड मेनली दैट एंटीबायोटिक यूज्ड in the infection that caused by Staphylococci, Clostridia, Streptococci etc। अगर ये बैक्टीरिया से आपको इन्फेक्शन होता है, Staphylococci, Clostridia, Streptococci, अगर इनसे आपको इन्फेक्शन होता है तो आप कौन सी मेडिसिन प्रीफर कर सकते हो? पेनिसिलिन। Medicine containing penicillin are useful to treat the certain bacterial infection of the ear, nose, throat, skin as well as diseases like pneumonia and scarlet fever। अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है और मेनली ईयर, नोज, थ्रोट, स्किन का अगर इन्फेक्शन हुआ है और साथ में ही निमोनिया का इन्फेक्शन हमें होता है, स्कारलेट फीवर्स मीन्स बॉडी पे पैचेस आ जाते हैं, रेड पैचेस के साथ हमें हाई फीवर रहता है, ऐसी कंडीशन में भी हम लोग पेनिसिलिन यूज कर सकते हैं। नाउ हु डिस्कवर्ड दिस पेनिसिलिन? ओके, किसने ये डिस्कवर्ड की? So the picture of the scientist is given here, that is the Alexander Fleming, Dr. Alexander Fleming। he was a professor of the microbiology, एक microbiologist थे at Saint Mary Hospital। okay, ये सेंट मेरी हॉस्पिटल में एक प्रोफेसर थे, माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर थे। माइक्रोबायोलॉजी मीन्स हु स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये वहाँ वर्क करते थे। ये वहाँ वर्किंग करते समय उन्होंने एक्सीडेंटली क्या फाइंड आउट किया है? ये मेडिसिन फाइंड आउट की है, दैट इज़ द पेनिसिलिन। कैसे? लेट्स सी। Alexander Fleming, a professor of microbiology at St. Mary's Hospital, had cultured the varieties of bacteria and fungi in petri dishes in his laboratory। okay, whenever he was doing working at his laboratory, जब वो अपने लेबोरेटरीज में काम कर रहे थे तब इन्होंने क्या किया? बहुत सारे वेराइटीज़ के बैक्टीरिया और फंगी के पेट्री डिशेस बनाए। नाउ व्हाट इज़ अ पेट्री डिश?
जैसे ही आप हायर क्लासेस में जाओगे, लाइक इफ़ यू आर डूइंग द BSc और MSc, इन दैट यू कैन सी दैट ऑल इंस्ट्रूमेंट पेट्री डिश, इट इज़ द ग्लास मेड अप फ्रॉम द ग्लास, इट इज़ अ सर्कुलर डिश। जैसे प्लेट रहती है हमारे घर पे, वैसे ही ये एक प्लेट रहती है, ठीक है। और ये प्लेट के ऊपर एक लीड रहता है जो उसको कवर करके रखता है। मतलब ये जो लीड है जो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये ऊपर से कवर है उसको, ये नीचे जैसे एक प्लेट है और उसके ऊपर हम लोग लीड कवर करते हैं, लाइक दैट। ये एक लीड है, ठीक है। जैसे हम लोग टिफ़िन बॉक्स रहता है, टिफ़िन बॉक्स के ऊपर हम ढक्कन फिट करते हैं वैसे, लेकिन ये मूवेबल रहता है लीड, ये नीचे के प्लेट से ये बड़ा रहता है लीड। ओके, सो इट इज़ अ पेट्री डिश। उन्होंने क्या किया, ये पेट्री डिश में बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगी के कल्चर ग्रो किए। ग्रो करने के पहले हमें यहाँ ऐड करना होता है न्यूट्रिएंट मीडियम, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी तो ग्रो होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट मीडिया हम इसमें ऐड करते हैं, वो सॉलिड होता है, ठीक है। हमने ये पूरा मीडिया इसमें ऐड कर दिया। अब वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, ये न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर उन्होंने ऐसे बहुत सारे प्लेट्स बनाए, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट अ सिंगल प्लेट। तो उन्होंने बहुत सारे प्लेट्स बनाए, पेट्री डिशेस बनाए न्यूट्रिएंट मीडिया के, और किसी किसी प्लेट्स में उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो किया, तो किसी प्लेट्स में उन्होंने फंगस को ग्रो किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ऑन 3rd September 1928, while observing Staphylococci culture, he made an interesting observation in one petri dish. In that petri dish, the fungal colonies had grown, but the area around those colonies was clean and clear. That is, bacteria had actually been destroyed. After further studies, he confirmed that the fungus growing there was a penicillium, and its secretion has destroyed the bacterial colonies. Thus, the first antibiotic penicillin has been discovered accidentally, and this formed the basis for attempt to find the cures for incurable disease. Shouldn't we always be grateful to Alexander Fleming for discovering the life-saving antibiotic? Yes, we are thankful to Alexander Fleming that he discovered at that time such a life-saving antibiotic. Okay, now it is a petri dish, okay, that cultured by अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऐसी ही एक डिश उन्होंने बनाई थी, ठीक है, जिसमें मतलब बहुत सारे ऐसे डिशेस उन्होंने बनाए थे जिसमें उन्होंने न्यूट्रिएंट मीडिया ऐड कर दिए थे, बहुत सारे बैक्टीरिया के कल्चर्स उन्होंने और कल्चर्स ग्रो किए थे। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जब ये प्लेट एज इट इज़ थी, तब ऐसा उनको देखने को मिला कि जैसे ये कल्चर्ड है, बैक्टीरिया के कॉलोनीज़ इसमें मतलब पूरे बैक्टीरिया फैले हुए हैं, लेकिन इतने प्लेट्स में से उन्हें एक प्लेट में ऐसे दिखाई दिया कि कहीं कहीं जगह पे फंगस ग्रो हुआ था। जस्ट कंसिडर दैट डार्क पोर्शन इज़ अ फंगस, ठीक है, ये ऐसे फंगस ग्रो हुआ था, और वो फंगस के नियर अबाउट का जो एरिया था वो पूरा क्लीन एंड क्लियर था। ओके, यहाँ ऐसे सर्कल्स बन गए थे और ये पूरा क्लीन एरिया था, लाइक दैट आई ड्रॉ इन दिस पिक्चर। Firstly, we are seeing here कि in complete plate there is the formation of the bacterial colonies. But आप अब यहाँ देख सकते हो कि जैसे जिस प्लेसिंग पे जहाँ फंगस ग्रो हुआ है वहाँ का जो बैक्टीरियल कॉलोनीज़ का एरिया है वो पूरा क्लीन हो गया है। इससे क्या कंक्लूजन निकाला था डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कि ये जो फंगस यहाँ ग्रो हुआ है, ये फंगस की वजह से यहाँ पर्टिकुलर एरियाज़ के जो बैक्टीरिया है वो पूरे कील हो गए। उसके बाद उन्होंने ये फंगस की स्टडी की कि ये एग्जैक्ट जो फंगस ये प्लेट पे ग्रो हुआ है वो कौन सा है। ओके, इन हिज रिसर्च ही फाउंड दैट फंगस नथिंग बट अ पेनिसिलियम, and from that fungus he made a first antibiotic, and that's why he given the name to that antibiotic, that is a penicillin. So that's why we are very thankful to Dr. Alexander Fleming sir that at that time he discovered such a life saving antibiotic. Some cautions are given here, as we many times we are doing such thing that we avoid either going to hospital and we are just purchasing the medicine from the pharmacy. Okay, regarding that some instruction is given here. The antibiotic should be taken only when prescribed by doctors. एंटीबायोटिक आप लोगों को तभी लेनी चाहिए जब किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है,
डोंट परचेज इट बाय योर ओन, खुद के मन से कोई भी फार्मेसी से एंटीबायोटिक्स लेना अवॉइड करना चाहिए. डोंट परचेज एन एंटीबायोटिक फ्रॉम मेडिकल स्टोर विदाउट prescription from doctor. Yes, it is explained here. Without prescription of the doctor, don't purchase any antibiotic. Don't consume antibiotics on your own to treat common disease like throat infection, common cold or influenza. Yes, most of the time common cough, cold, fever के लिए हम लोग easily कोई भी medicine ले लेते हैं, but just avoid to consume such antibiotic. Okay, just consult to your doctor. Even if you feel well, before completing of the prescribed course of the antibiotic, you must continue and complete it. जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर हमें 3 डेज़ 5 डेज़ का एक कंप्लीट कोर्स देते हैं, उतने मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं. बट एग्जैक्ट हम क्या करते हैं कि अगर 1 to 2 डेज़ में अगर हम रिलीफ फील करते हैं तो हम नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक्स है या मेडिसिन है वो नहीं लेते हैं. बट इट्स रॉन्ग. जितना कोर्स डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया है उतना लेने के बाद ही जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया ने आप लोगों पे अटैक किया है या आपको इन्फेक्शन हुआ है वो पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद ही कील हो सकता है. दैट्स वाई ऑलवेज कंप्लीट योर मेडिसिन कोर्स. डोंट सजेस्ट टू अदर द एंटीबायोटिक विच वेर यूजफुल टू यू. वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? अगर आपको कोई फीवर आया है, कफ कोल्ड है, कॉमन कफ कोल्ड है, अगर आपको किसी मेडिसिन से अगर रिलीफ होता है, अगर आपके फ्रेंड्स को या थर्ड पर्सन को अगर सेम सिम्टम्स है तो आपने जो मेडिसिन यूज़ की है वो मेडिसिन थर्ड पर्सन को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हर एक पर्सन का इम्यूनिटी पावर, इन्फेक्शन, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स अलग हो सकते हैं. सो जस्ट अवॉइड दैट थिंग. नेक्स्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर. एंड्स ग्रो फंगी इन देयर termitarium, that is the entrail of the ants, and to obtain food from it. Some species of wasp and other insects lay their eggs in the fungal bodies growing on the trees, thus ensuring a food supply for their larvae. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, जो एंड्स रहते हैं, चींटियाँ जो रहती है वो क्या करते हैं, अपना जो एंट्रील है वो कहाँ बनाते हैं, फंगस पे बनाते हैं. फंगस पे वो क्यों बनाते हैं? ताकि वो पर्टिकुलर फंगस से न्यूट्रिशन ले सके, फूड ले सके. लाइक दैट सम वास्प एंड द अदर इंसेक्ट. वास्प और अदर इंसेक्ट भी कभी कभी क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े ट्रीज पे जो फंगल बॉडीज़ ग्रो होती है, फंगस ग्रो होता है, ठीक है, उनमें ही अपने एग्स ले करते हैं, वही अपने एग्स देते हैं. और वो एग्स से मतलब वो एग्स हैच होके जब उसमें से लार्वास निकलते हैं तो वो लार्वास वो फंगल बॉडी से अपना न्यूट्रिशन कवर अप करते हैं. ओके, अप टू दिस पोर्शन और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर completed. We are seeing in that the different useful microbes. We are studying about antibiotics also, and one of the antibiotic, that is penicillin, is seen here. In our next video we will discuss about the harmful microorganisms.